where every child gets a holistic development. Holistic development means not only academic but also social, development in sports, development of their emotions, their personality. So because of that, the curriculum is so distinct, so out of the box, that we give them a training on sports person, face of the month. Face of the month, I have included all the history, like which were our past leaders who really led the country in different directions. And like for example, APJ Abdul Kalam, Mother Teresa, and our players, Mahendra Singh Dhoni, how they have taken us to the international platform, Kalpana Chawla, and they have really become the inspirers. Then I also want the children to become entrepreneurs, open their own small setups rather than just being CEOs. What we have observed is that we are manufacturing a lot of CEOs from India. Today the top world companies have all Indian CEOs. But we are not manufacturing people who can make their own businesses, own small setups. As per our population, the number of people coming up as for entrepreneurs or for Olympic Games is very minimal. If we see, we did not get one gold medal this year. So if we are working at the root level where at the roots we teach the children about sports, about games, and we teach children about all the intelligences, that only academic intelligence is not enough. Like, do you know, sir, we have, a human being has 9 intelligences. Okay, mathematical, linguistic, social, music, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, naturalistic. So many intelligences we have, but very sadly, in our schools, we focus only on mathematical and linguistic. All our subjects are based only on these 2 intelligences. And the children who excel and who come first in 10th and 12th, we give them awards. But actually, are they eligible for these awards? Because it's not the overall development. It is development in only 2 intelligences, which is just the 20% of our brain. So why can't we focus on the holistic development, holistic intelligence, where we develop all the 9 intelligences. We encourage music also, we encourage interpersonal also, we encourage intrapersonal also. What is intrapersonal intelligence? Intelligence about your own self. Yesterday I was training the teachers, and the teachers did not know what are their weaknesses, what are their strengths. वो अपने आप को ही नहीं जानते, which is very important. अपने आप को जानना कि हमारे अंदर क्या वीकनेस है, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हम उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम कितना उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं. सो द वीकनेस ऑल्सो, हाउ वी कैन ओवरकम अवर वीकनेसेस, कैसे हम वीकनेस से आगे बढ़ के हम आगे जा सकते हैं. अगर टीचर्स को ही नहीं पता है तो बच्चों को कैसे पता होगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम इमोशंस, टीच देम वीकनेसेस, एंड टीच देम दैट यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ. एक्चुअली हमारे ग्रंथ, हमारी साइकोलॉजी कहती है कि 1/10 ऑफ आवर डे शुड बी स्पेंड ऑन योर ओन सेल्फ. मेडिटेशन में, सोच में कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, अपने से कंपैरिजन करने में. 1/10 कितना टाइम होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/10 उसका टाइम होता है 2 घंटे 40 मिनट. हम क्या 40 मिनट भी स्पेंड करते हैं अपने आप के साथ? बैठते हैं, सोचते हैं कि हमने कल क्या किया, हम आज क्या कर रहे हैं, हमने ये क्या गलत किया, उसको कैसे सही करना चाहिए, या वर वी ऑनेस्ट, वर वी गुड. वी डोंट स्पेंड दैट टाइम. सो हाउ विल वी पॉलिश आवरसेल्व्स, हाउ विल वी बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग? अगर हम गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बनेंगे, हमारा कंट्री कैसे गुड बनेगा? सो दैट्स वेयर वी नीड टू ट्रेन द चिल्ड्रन. एंड इन माई करिकुलम आई हैव पुट इन स्पेशल टाइम वेयर चिल्ड्रन कैन नो देमसेल्व्स, खुद को खुद से मिला सकते हैं. That is the uniqueness of our curriculum, which we have included brain gym also. Brain gym is a kind of exercise where we integrate the brain. The right brain and the left brain gets integrated, and you can read and write faster. So I am training the children on and the teachers on a lot of brain gym games
where our brain works faster 20 times than the normal brain. And our parents think that बच्चा जब 3 साल का होता है या 4 साल का होता है, आफ्टर दैट इट इज़ नेसेसरी टू सेंड टू स्कूल, बट एक्चुअली द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग राइट फ्रॉम द वूम. प्रेगनेंसी से ही बच्चा सीखना शुरू करता है. एंड जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और साइनेप्सेस होते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं एंड दैट गेट कनेक्टेड व्हेन वी एक्सपोज देम टू सर्टेन एक्टिविटीज, इंटेलिजेंसेस. और जो आपको पता होना चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि द न्यूरॉन्स एंड द साइनेप्सेस इंक्रीज 3 times more than an adult. तो जब बच्चा 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, उसके पास जो न्यूरॉन्स और साइनेप्सेस हैं ब्रेन में, वो एक अडल्ट से 3 times ज़्यादा होते हैं. मतलब कितना सीख सकता है. उसके पास 64 लैंग्वेजेस सीखने की कैपेसिटी है. और हम सोचते हैं कि खाली इंग्लिश सीखें, अपनी मातृभाषा नहीं सिखाते हैं. We don't teach them our language, thinking the child will get confused. No, the child can learn Marathi, Hindi, English, other foreign languages, other Indian languages at the same time. So we are putting that in our curriculum so that the child can learn and speak all languages, because he has that much capacity. But by making the child sit at home, the parents are killing that capacity, because brain works on a system, use me or lose me. या तो आप मुझे यूज़ करो या मुझे खो दो. तो आपको क्या करना है? पेरेंट्स से ये मेरा सवाल है. बच्चे के ब्रेन को आगे बढ़ाना है, यूज़ करना है या लूज़ करना है? अगर लूज़ करना है, घर में बिठाओ, कुछ कराओ मत. पर अगर यूज़ करना है, एक्सपोज देम टू एक्टिविटीज़, नॉट टू द स्क्रीन बट टू द एक्टिविटीज़, नॉट टू द मोबाइल बट टू फाइन मोटर स्किल, लार्ज मोटर स्किल्स, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ बढ़े. और मुझे और भी ये करिकुलम में ये है कि आप उनको प्रेशर मत डालो कि खाली नंबर सीखें और अल्फ़ाबेट सीखें. और भी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, जनरल नॉलेज की, स्पोर्ट्स की, सारी वैल्यूज़ सीखें. ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, खाली नंबर्स और लेटर्स सीखने के अलावा. तो वो भी सीखें, साइमल्टेनियसली ये भी सारा कवर करें. तो उसमें हम बच्चे को एक होलिस्टिक पर्सनालिटी बना सकते हैं. सो दैट इज़ आवर यूनिकनेस ऑफ आवर करिकुलम. एंड विथ स्टोरीज, विथ रोल प्ले, विथ और एक चीज़ मैंने ऐड की है नई करिकुलम में, वो है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ. तो ये चारों चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, कि बच्चा बचपन से ही 2 साल की उम्र से ही काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे, डिफरेंट चीज़ें करें. स्टेम वो है मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड देन अराउंड द वर्ल्ड की चीज़ें उन्हें उसके जानकारी हो कि ये देश में क्या है, ये देश से हम अच्छा क्या सीख सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं. तो 1 डे ऑफ द वीक हमने अराउंड द वर्ल्ड रखा है. 1 डे ऑफ द वीक हमने रखा है पूरा फोनिक्स, जनरल नॉलेज, कि उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए, फोनिक्स से सीखें. और एक डे रखा है योगा और ज़ुम्बा. योगा करें क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ की भी बहुत ज़रूरत है. और 1 डे हमने रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्वर्सेशन स्किल्स, टेबल मैनर्स, कैसे मैनर्स से वो सीख सकते हैं. और ज़्यादातर हमने एक्टिविटीज़ ज़मीन पे बैठ के, अर्थ पे बैठ के की हैं, क्योंकि अर्थ से हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है. वो मैग्नेटिक एनर्जी, अगर आप हमारी संस्कृति देखें, हमारा कल्चर देखें, तो हम खाना भी नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते थे. क्यों? ताकि हमारा हाजमा अच्छा हो, डाइजेशन शुड इम्प्रूव. बट by now sitting on the tables we are losing that culture, we are losing that values. We can bring that culture again, we can bring that values again. वो भी हम सिखा रहे हैं. तो हमारा जो है एक कॉम्बिनेशन है इंटरनेशनल और इंडियन वैल्यूज़ का, जिससे बच्चा बहुत ही यूनिक तरह से डेवलप हो सकता है. लास्ट बट लीस्ट हम और एक बड़ी नई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो है लाइफ स्किल्स. झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े घड़ी करना, अपनी चीज़ें अपने आप करना, वो भी सारा हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड है. तो ये हमने एक पूरा पैकेज बनाया है, जिसमें बच्चा ना तो लाइफ स्किल्स, ना सिर्फ लाइफ स्किल्स, बट एकेडमिक्स, सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, सारी चीज़ें वो सीखेगा और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के जाएगा. क्योंकि हमने देखा है IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस में, कोटा में भी बच्चे सब सीख जाते हैं,
पर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका इमोशनल बैलेंस नहीं है। बट अगर इमोशनल बैलेंस बचपन से सिखाया जाए तो वो सुसाइड रेट हमारा कम हो सकता है। सो दैट इज़ वेयर आवर करिकुलम स्कोर्स ओवर अदर्स एंड दे आर ट्राइंग टू give a holistic total curriculum to the parents.